I will introduce the moderator, and I'll ask the moderator to introduce the panelists. How are you? Amber Rahim Shamsi is Director, Center of Excellence in Journalism at the Institute of Business Administration, IBA. Ms. Shamsi is an award-winning multimedia journalist, political analyst, and free speech advocate with wide-ranging experience in television, radio, online, and print media. Thank you. Over to Ms. Shamsi. All right. Thank you very much. It's a packed house, I can see. मेरी introduction तो हो गई है, and obviously, given the panelists that we have on stage, एक वो रिवायती जुमला होता है, तारुफ के मोहताज नहीं है, but I'm just going to add a couple of quick comments as well. मेरे साथ इस वक्त ज़ाहिर शबर ज़ैदी साहब, as you know, former accountant भी हैं, अपने आप को कहलाते तो हैं, लेकिन I would say that for me his better introduction is somebody who is vociferous in his dissent and very honest and very clear and very blunt. And really looking forward to hearing his thoughts on the subject at hand, which is the Federation, 2 steps forward, 1 step back, whichever way you want to see it. Unke saath Asad Umar Saab, again, well known, former politician, former finance minister, former planning minister, former head of Engro, and very obviously been involved in very key discussions around the subject that we're talking about, such as the NFC award, whether it is the 18th Amendment. Really interested in hearing what he has to say as well. Unke saath Dr. Kaisar Bengali Saab, again, primary description economist ki hai, but has been instrumental in the NFC award, and I would say a vocal supporter of the 18th Amendment as well. I'm wondering if there's going to be any dissent in terms of the 18th Amendment, because that's been a contentious issue. And at the end, Faisal Siddiqui Saab, वैसे तो you know him as a lawyer, has actually represented and key groups in huge, important cases that have been ongoing these days and in the past. As an example, obviously the practice and law procedure bill as well, or iske alawa civilian trials in military courts. But we know that the question of the Federation isn't just a legal or an economic one. It's also a political question. And I would like to start with Asad Umar. And while there are many, there's a tendency, or there's a thought that says that authoritarian governments like to control resource and information and power. So there's a centralizing impulse at the center of authoritarianism, whereas Pakistan, as we know, being multi-ethnic, multilingual, multi-party, the best solution for a country like Pakistan is, and other places, obviously a federation in which the power is with the people at the lowest level. But I also would like to ask Asad Umar, in the light of the recent elections as well, that while there is a centralizing impulse at play in the corridors of power, would you say, even though the election results are as contentious as they are, that there are at least 2 provinces that are very clearly demonstrated with clear majorities, that power needs to be with the people? Or do you think that because of these election results being rigged or contentious, the vote of the people, or what they've said very clearly through their vote, will not impact the centralizing impulse? Thank you, जी. पहली बात तो इलेक्शन की जो आप बात कर रही हैं, ज़ाहिर है हम तो बाहर बैठ के देख रहे हैं, अंदर की खबर तो हमारे पास नहीं है. सामने मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिनके पास शायद अंदर की खबर हो. हम तो टीवी पे देख रहे हैं, 2 ही किस्म के लोग हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त टेलीविज़न के ऊपर. ज़्यादा तादाद उन लोगों की जो कह रहे हैं धांधली हुई है, और बड़ी तारीखी धांधली हुई है. कुछ बाकी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो बड़े शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं. तीसरी मखलूक तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रही. तो इस सूरत हाल से असर जो है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर लॉन्ग टर्म क्या होगा, वो एक बहस तलब मसला है. लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि सिंध के अंदर ओवरवेलमिंग वोट पड़ा,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और ख़ास तौर पे अंदरून सिंध के अंदर और केपी के अंदर तो तहरीक इंसाफ को सूबे के हर हिस्से के अंदर ओवरवेलमिंग वोट पड़ा, तो क्या उसकी वजह से क्या डिसेंट्रलाइजेशन और पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं? लेकिन अगर आप इनको देखें, ये दोनों कौन सी पार्टी हैं जिन्होंने ये वोट लिया? सिंध के अंदर वोट सिंध के नेशनलिस्ट को नहीं पड़ा, एक उस पार्टी को पड़ा जो फेडरल पार्टी है, जो 4 दफ़ा पाकिस्तान में वफाक में हुकूमत बना चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट जो है वो पख्तून नेशनलिस्ट पार्टीज़ को नहीं पड़ा, एक ऐसी पार्टी को पड़ा जिसका लीडर लाहौर से है, जिसकी सियासत जो है वो वफाक की सियासत है। तो 18th अमेंडमेंट की जो आपने बात की, मैं बहुत सपोर्टर हूँ 18th अमेंडमेंट का। मेरे ख्याल में 18th अमेंडमेंट एक बहुत अच्छा इकदाम था और उसको स्ट्रेंथन हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो डिस्पर्स हो रही है और वो ऐसी कोई एथनिक शेप ले रही है, तो पाकिस्तान कमज़ोर नहीं हो रहा। 18th अमेंडमेंट में लोगों के मसाइल अगर उनके घर पे हल होते हैं तो उससे पाकिस्तान का वफाक मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता। ये बिल्कुल डायनामिक्स ऑफ पावर की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप तमाम ताकत जो है वो मरकूज़ कर देंगे सेंटर के अंदर तो उससे सेंटर मजबूत हो जाएगा। सेंटर इससे मजबूत नहीं होगा कि इख्तियार किसके पास है। सेंटर उस वक्त मजबूत होगा, वफाक पे लोगों का उस वक्त यकीन होगा जब लोग समझते हैं कि वफाक जो है उसकी एग्जिस्टेंस से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। तो अगर किसी के गली और मोहल्ले के अंदर पानी का निज़ाम बेहतर हो रहा है तो वो मुल्क के बारे में बेहतर सोचता है। अब सिर्फ सवाल ये है कि अगर आपने मुल्क के बारे में लोगों को बेहतर आप चाहते हैं कि उनकी सोच हो, जैसे मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों की है, तो जैसे मैंने कहा कि वो काउंटर इंडिकेटिव लगता है, लेकिन काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन आपको पावर डिस्पर्स करनी है, डिवॉल्व करनी है। अच्छा, इसके अंदर दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो आखिरी में इसको बात करके फिर आई हैंड इट ओवर टू यू। जाहिर है कि जो अगर पाकिस्तान में तकरीबन आधा वक्त जो है वो फ़ौज की हुकूमत होती रही है, फ़ौज सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है, तो फ़ौज तो चाहेगा कि ताकत जो है एक नेचुरल इम्पल्स है कि सेंट्रलाइजेशन उसकी की जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है वो डोमिनेटेड रहा है बहुत अरसे तक इसेंशली पार्टीज से विच आर फैमिली कंट्रोल्ड पार्टीज, और फैमिली कंट्रोल करना चाहती है, तो एक फैमिली कंट्रोल पार्टी के लिए भी ये सिस्टम बेहतर सूट करता है जहां सारे इख्तियारात मरकूज़ हों एक जगह के ऊपर। वहां पे भी पावर डिवॉल्व होना जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के मिजाज को और उसके इंटरेस्ट को सूट नहीं करती। सो जाहिर है जमहूरियत सबसे अव्वलीन रिक्वायरमेंट है, जमहूरियत तो जाहिर है होनी ही चाहिए। पाकिस्तान बना जमहूरियत की बुनियाद पे, पहला दुनिया का मुल्क जो वोट की बुनियाद के ऊपर बना। लेकिन उस जमहूरियत को अगर आप डीपन करना चाहते हैं, जैसे हम सबकी ख्वाहिश है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी अगर जमहूरियत हमारी ज़्यादा बढ़ जाए और उसको एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है, सिर्फ मैं अपनी जहन से नहीं बात कर रहा हूँ, जो मैंने खुद देखा है, आप डिवॉल्व करें पावर, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मजबूत करें, उससे पाकिस्तान तो मजबूत होता है, उससे पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होती है, ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर मजबूत होती है। जी शबर जैदी साहब, मैं क्योंकि मैंने जैसे कहा ज़ाहिर है जो फेडरेशन का पर जो सवालात उठते हैं ये मुआशी हवाले से भी उठते हैं, कानूनी हवाले से भी उठते हैं, सियासी हवाले से तो असद उमर साहब ने बात की। मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा लेट्स टॉक मनी। 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ जो बोलने वाले हैं वो 2018 के इंतखाबात से कबल भी आए, जब असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, तब भी उनकी जब हुकूमत में थी तब भी एक डिबेट हमेशा रहती थी कि 18th अमेंडमेंट को रोल बैक या तो करें। आप क्या समझते हैं ये जो 18th अमेंडमेंट पर जो सवाल उठता है, डेवोल्यूशन पे आता है, क्योंकि दो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक तरफ आपको अगर जैसे फ़ौज की बात कर रहे थे असद उमर साहब, मुशर्रफ के दौर में मिडिल टेयर तो ख़त्म कर दिया गया था इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स, बट लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन किया था। इज़ दिस प्राइमरली, डू थिंक, अगर हम कह सकते हैं, इज़ दिस प्राइमरली एन इशू ऑफ, ये जो डेवोल्यूशन की बात है, इज़ इट प्राइमरली एन इशू ऑफ मनी, इज़ इट फॉर द बुक्स? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैं थोड़ा सा 18th अमेंडमेंट और NFC दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। और 18th अमेंडमेंट का मकसद ये था कि आप गवर्नमेंट का साइज़ छोटा करें फेडरेशन में और उसको नीचे लेके जाएं और उसको रिवॉल्व करें। वो बिल्कुल नहीं हुआ, मगर वो बिल्कुल ठीक था, मतलब क़ानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक है, उसको होना चाहिए था। जो मैं समझता हूँ जो कामयाबी सियासतदानों ने हासिल की है 18th अमेंडमेंट से,
वो पब्लिक के सामने वाजे नहीं हुई अभी तक। वो मैं समझा देता हूँ वो क्या है। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है इस वक्त, ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ टीवी पर कि ये दुकान चलने वाली नहीं है। फाइनेंशियल साइड की बात कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे सूबे हैं, जो 18th अमेंडमेंट के बाद NFC अवार्ड बना, उसमें सियासतदानों ने अच्छा एक ये रोल अदा किया कि जो मेरी ग्रॉस इनकम आ रही है उसमें से मैंने प्रोविंसेस को पहले पैसे दे दिए, तो प्रोविंसेस को अपना हक मिल गया। और जो अगर उसके बाद उसे डिवॉल्व भी हो जाए, अगर आगे उसके नीचे डिवॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान का बुनियादी मसला हल हो जाता है। क्योंकि हम सारे आज, चाहे हम खुल के बात नहीं करें, हम सारे ये कहते हैं कि एक इदारा जो है वो पाकिस्तान के माशी और सियासी मामलात में दखलंदाजी बहुत ज़्यादा करता है। ये हमारी हकीकत है, हम चाहे इसको छुपाएं या हम इसको अया करें। ये कौन सा इदारा है? हाँ, FBR? नहीं, FBR नहीं, नहीं, मैं साफ कहता हूँ आर्मी। मुझे कोई इस पर डर नहीं है। आर्मी का हमारे लोगों का ये कहना है कि आर्मी का, मिलिट्री का बहुत ज़्यादा रोल है पाकिस्तान की माशी भला। अब जो NFC अवार्ड में या 18th अमेंडमेंट में सियासतदानों ने हासिल किया है, मेरे हिसाब से वो समझा भी नहीं सके पब्लिक को कि उन्होंने क्या हासिल किया है। देखिए, आपका जो ग्रॉस अमाउंट आता है उसमें से सूबों को मिल जाता है, और दो बड़े खर्चे जो हैं वो उसके बाद होते हैं, एक इंटरेस्ट कॉस्ट, एक मिलिट्री। तो जितना जितना पाकिस्तान का फेडरेशन का खर्चा कम होगा, इतनी मिलिट्री कमजोर होती जाएगी। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। और हमारा जो बुनियादी, हम ये कहते हैं कि मिलिट्री का रोल, मिलिट्री का इंटरफेरेंस पाकिस्तान की माशरे में बढ़ रहा है। तो जब मिलिट्री का रोल कम होगा तो सियासतदानों के हाथों में जो फेडरेशन है वो मजबूत हो जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली सियासतदान हमेशा ये चाहते हैं कि वो मिलिट्री के कंधे पर पावर में आए, चाहे वो कोई भी हो। मुझे किसी का, मैं खुद इसका एविडेंस हूं कि जब तक हम पावर में होते हैं हम कहते हैं इदारे एक पेज पर हैं, जब हम पावर से हट जाते हैं हम कहते हैं एक पेज पे नहीं है, वो पेज फट जाता है। ठीक है ना? तो ये जो हमने दो चीज़ें बना रखी हैं, तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम से, NFC अवार्ड से फेडरेशन और पाकिस्तान का निज़ाम मजबूत हुआ है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर एक चेक लगा है। ये आपको शायद समझ उस तरह नहीं आए, अगर आपके सामने कागज़ होगा तो समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। चेक लगा है, और इस ये चेक लगना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया है और नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि मैं यहां से जाने के बाद कहीं और भी जवाब देना पड़े, मगर ये रियलिटी है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत से आप सर नहीं छिपा सकते कि हमें मिलिट्री के एक्सपेंडिचर पे अब नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि हम अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अगला सवाल जो है, जो कि सियासतदानों ने पूरा नहीं किया, वो था जब 18वीं तरमीम आई थी तो उसके साथ आर्टिकल नंबर 140A भी आया था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। उसके किसी क्लॉज पे अमल दरामद नहीं हुआ, एक भी क्लॉज पर आर्टिकल 140A के अमल दरामद नहीं हुआ। तो मेरा जो शिकायत अक्सर कैसर बंगाली साहब से रहती है कि सर, एक 18वीं तरमीम में सूबे तो ले गए मगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं आया फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो ये किताबों में तो निज़ाम बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे हिसाब से किताबों में 18वीं तरमीम के हिसाब से पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत हो चुकी है। अब इस फेडरेशन को इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, जो इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ नहीं हो पा रही, और हम बार बार लड़ रहे हैं, और हम बार बार उन लोगों को दावत दे रहे हैं जिनकी बाद में हमें शिकायत होती है, जिनसे हमें शिकायत होती है। अगर आज आपने पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान के तमाम सियासी लोगों को साथ बैठना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान का स्ट्रक्चर अब इस तरह बन चुका है कि अगर आप सब साथ नहीं बैठेंगे तो ये फेडरेशन नहीं चल सकती।
ये मेरा इसके ऊपर कमेंट है। बाकी आप सवाल कर ले, मैं जवाब दे दूंगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं कैसर बंगाली साहब आपके पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि लड़ाई की बात की थी शबर जैदी साहब ने, और अगर हम चाहते हैं कि फेडरेशन सक्सीड हो, जो लोगों को, जैसे असद उमर साहब भी कह रहे थे कि लोगों तक जो गवर्नेंस है, जो रिसोर्सेज हैं, जो अखराजा जो उन पे स्पेंड करने की ज़रूरत है, वो लोएस्ट लेवल तक हो, तो उसके लिए सियासी जमातों को बात करना होगा। अब बाहर तो सड़कों पे आपको लड़ाई नज़र आती है, मीडिया पे भी आपको लड़ाई नज़र आती है, लेकिन क्योंकि आप सिंध को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं एनएफसी के फोरम पर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या इन फोरम पे भी आपको नज़र आती है, जिसकी वजह से जो लोगों तक वसाइल पहुँचने चाहिए वो नहीं पहुँचते? मेरा ख्याल है जो कुछ कहा गया है असद ने और शबर ने, उससे 100% एग्रीमेंट है। पता नहीं इन्होंने कहा मेरी आपसे डिसएग्रीमेंट है, उस पॉइंट पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज। पहली बात तो ये कि जो बेनिफिट्स हैं थोड़ा कॉन्क्रीट टर्म्स में बता दूं। इमीडिएटली आफ्टर द 7th NFC अवार्ड आई वाज अपॉइंटेड एडवाइज़र फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन सिंध गवर्नमेंट, एंड इन सिंध जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी वो एक कैंपेन शुरू किया कि कायम अली शाह और कैसर बंगाली ने बेच दिया सिंध को। तो कायम अली शाह वॉज ऑन NFC बिकॉज ही वॉज ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर। सो ही टोल्ड मी कि अब आप जाएँ समझाएं लोगों को। सो शाजिया मरी एंड आई वी वेंट आउट, वी 2 पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस की, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एड्रेस किए। उसका जब नतीजा आप देखें क्या हुआ 2010 में NFC एंड 18th अमेंडमेंट आया। 2013 में सिंध की जितनी नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी उन्होंने PMLN के साथ अलायंस किया। उनमें वो पार्टीज़ थी जो कहती थी एंटी लाहौर, एंटी आर्मी, एंटी पंजाब थी। NFC and 18th Amendment put an end to nationalist politics in Sindh, the separatist politics. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बेनिफिट है 18th Amendment का इन स्ट्रेंथनिंग द फेडरेशन। एंड आई फुली अग्री विद असद व्हेन ही सेज दैट इन तमाम इलेक्शंस में कहीं कोई नेशनलिस्ट नहीं जीते हैं, विच टेल्स यू द कंट्री इज़ यूनाइटेड। मैं अपना NFC का एक्सपीरियंस बताऊँ। 5 महीने तक हम intense negotiations में थे, 16 meetings of the NFC in 5 months. Not once there was a disagreement, not once एक सूबा दूसरे पे चीखा था या इल्ज़ाम लगाया। It was a very congenial way of coming to an agreement. मेरा ख्याल है कि political parties की जो conflicts, political parties की तो conflicts होनी है, अगर नहीं है something is wrong, because all political parties represent particular interests. And democracy is the name, or politics is the name of reconciling conflicting interests. तो conflict तो inherent है, लेकिन जो polarization है वो नहीं है। अगर पीछे से बिग ब्रदर का हाथ हट जाए तो ये सियासतदान बैठ के सारे फैसले करेंगे और हम आंगी से करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। फैसल सिद्दीकी साहब, लेट मी जस्ट सॉर्ट ऑफ पिक अप अ पॉइंट है जो अभी बात हुई थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से भी कि उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती। हमने देखा कि इंतखाबात से कबल बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शंस पर को कलअदम करार दिया गया, वो सिंबल के बगैर इंतखाबात में गए, और यही सवाल उठा कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी भी जो इंतखाबात होते हैं उनके बेशक आइन के मुताबिक हों, वो भी एक ठप्पा इलेक्शंस होते हैं, यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती। और फिर एक और जो एक तनकीद आती है सियासी जमातों के हवाले से वो ये भी आती है कि हम अगर NFC के बारे में बात करें एंड डेवोल्यूशन के बारे में बात करें, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस अदालत हिदायत देती है तो फिर करवाए जाते हैं, और अगर करवाए जाते हैं तो पैसा नहीं जाता। तो हाउ वुड यू सॉर्ट ऑफ, इफ यू कुड पुट the internal democracy of political parties in the context of these tensions, जो आपको civil military tensions भी नज़र आते हैं, internal family dynamics होते within Pakistan as well. Thank you.
मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारी डिबेट है अबाउट इंटरनल डेमोक्रेसी एंड लोकल बॉडी, दिस इज़ ऑल अ डिस्ट्रैक्शन। और जो रियल डिबेट है पाकिस्तान में उसके ऊपर उससे अटेंशन हटाने के लिए जो रियल डिबेट है पाकिस्तान में वो ये माइनर इश्यूज़ पे नहीं है। वो डिबेट है जो 2008 से चल रही है बिटवीन द स्ट्रगल बिटवीन डी जोरे पावर एंड डी फैक्टो पावर। तो 2008 में 3-4 किस्म के इनकलाब आए 2008 के बाद। You had the revival of the constitution that gave birth to 4 things. Number 1, it revived the constitution, of course the text, as the primary framework through which your country is to be governed. The second was that it was the revival of electoral democracy. एक हद तक। तीसरी, you had a revival of the judiciary. And thirdly, which is equally important, is the growth of the media. जो आपके मुल्क में डी फैक्टो पावर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, वो 2008 से कोशिश कर रहा है कि इन तमाम डी जोरे जो चेंजेस आए 2008 के बाद उनको रिवर्स किया जाए। जो डेवोल्यूशन है इट इज़ पार्ट ऑफ दैट एजेंडा। तो पाकिस्तान में जो रियल क्राइसिस है, इसलिए मैं समझता हूँ ये दोनों इश्यूज़ एक रेलेवेंट है, सेकेंडरी है। जो रियल इशू है इसके आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट 2008 के बाद ये कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के सिस्टम को कंट्रोल करे, क्योंकि वो ये नहीं कर सकते जो वो पहले करते थे। ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को अब एब्रोगेट कर सकते हैं, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को अब सस्पेंड करके मैसिव अमेंडमेंट्स ला। दीज प्रोजेक्ट्स आर ओवर, दे आर पार्ट ऑफ द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। अब उनकी कोशिश ये है कि भाई हमारा जो मैसिव डी फैक्टो पावर है उसको हम इसी सिस्टम में किस तरह शामिल करें। तो 2008 से 2017 तक उनका मॉडल ये था कि एक बैलेंस ऑफ पावर रखें, 50% डी फैक्टो पावर हो उनका और 50% डी जोरे पावर हो, कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट हो। 2008 के बाद अब उन्होंने कोशिश की है कि जो डी फैक्टो पावर है उनका उसको 60 to 70% ले जाए। इसलिए यू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड, यू हैव डेमोक्रेसी बट देर इज़ नो फ्री इलेक्शन, यू हैव मीडिया एंड अ ग्रोथ ऑफ मीडिया, देर इज़ नो फ्री मीडिया, यू हैव ऑल द प्रोविजंस यू रिक्वायर फॉर डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस लेवल की डेवोल्यूशन नहीं होगी, बट it is never implemented and that is deliberate, because जिस तरह शब्बर साहब ने कहा कि the central problem of devolution of power is that it does two things which the military establishment cannot tolerate. It geographically and financially takes power away from Islamabad. They cannot tolerate this. Their power lies in the centralization of power in Islamabad. तो उन्होंने फिर क्या अब 2018 के बाद एक तो डेवोल्यूशन के हवाले से क्या करना शुरू किए। डेवोल्यूशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपकी किस तरह प्रोटेक्ट होती है। 3-4 मेन इंस्टीट्यूशंस का हम जिक्र कर देते। सेनेट है, आप अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन ही रिग करेंगे तो सेनेट में क्या ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट होगी बलूचिस्तान। फिर उससे भी वो खुश नहीं हुए तो उन्होंने अपना चेयरमैन ला के बिठा दिया ताकि वो हाउस जो है कुछ कर ही नहीं पाए, और वो बैठे हुए हैं अभी तक। फिर एक सेकंड तरीका आप देखिए कि 2 मेजर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करते हैं। वन इज़ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड द अदर इज़ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है प्रोविंसेस की और फेडरल गवर्नमेंट की। अब एक नया शोशा छोड़ दिया गया है SIFC का। मैं यहाँ आपसे सवाल करूँगी, यानी कि हमारा जो सफ़र रहा है अब NFC से अब SIFC तक है। जी, अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए इसका सारा ताल्लुक इस बात से है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गारंटी करते हैं उनको सबवर्ट किया जाए, उनसे हट के एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए। मैं सुनता हूँ टीवी पे लोग आते हैं और कहते हैं ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, मुझे तो नहीं नज़र आई। देखिए SIFC क्या चीज़ है। SIFC इज़ एन अमेंडमेंट मेड इन द बोर्ड
of Investment Ordinance 2001, a pre-18th Amendment law, and it basically takes over economic policy. आपकी इस्टेब्लिशमेंट के पास डिफेंस पॉलिसी भी है, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी है, फॉरेन पॉलिसी भी है, और इकोनॉमिक पॉलिसी भी टेक ओवर कर ली. If you look at the structure of the SIFC, unlike the Council of Common Interest and the National Economic Council, there is no representation of the provinces. And how does the heads of the armed forces sit on such a council? This is a violation of their oath. How can they be a part of government? And it's not in the statute itself. तो ये जो जंग है रेली, ये सब डिस्ट्रैक्टिव डिबेट्स हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी, लोकल बॉडी. जो पाकिस्तान में जंग है वो है बिटवीन डी जोरे पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डी फैक्टो पावर ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट. पहले खुदा का शुक्र था 2017 तक ये 50-50% पे राजी थे, कुछ बैलेंस ऑफ पावर था. 2008 के बाद what they now want is that de facto power should govern 60 to 70% of how Pakistan is governed. It is an unworkable system. It will not function. एक बात अगर आप, क्योंकि मैं असद उमर साहब के पास जाना चाहती थी, क्योंकि आई थिंक आई वुड लाइक यू टू एड्रेस इट, बट प्लीज अगर आप इफ लाइक देखिए, मैं इनपुट दे दें. फैसल से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी घर जाना है, आपको भी घर जाना है, ठीक है. तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि SIFC जैसे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो आपकी बुनियादी फेडरेशन के सिस्टम को डिरेल कर रहे हैं. और ऐसी चीज़ें जब इकोनॉमिक डिसीजंस में आएंगी तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी. मगर अब सवाल ये है, जो सबके सामने सवाल है, कि खैमे में ऊँट को आपने घुसाया था, अब ऊँट खैमे के अंदर है और आप बाहर हैं. तो अब इस ऊँट को खैमे से बाहर कौन निकालेगा? ये नहीं, सवाल ये है कि ऊँट को लेकर कौन गया है? हाँ, ऊँट को लेकर कौन गया है? हाँ, ऊँट नहीं, आज से नहीं, वो तो 51 से लेकर आए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अब खैमे के अंदर आ गया. अब सवाल ये है कि खैमे से ऊँट को निकालेगा कौन? मेरा ये जाती व्यू है, मेरा ये जाती व्यू है कि मेरा, सर फैसल साहब, मेरा जाती व्यू है कि ऊँट से पंगा नहीं लें, ऊँट से पंगा नहीं लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता दाना दे के बाहर निकाल दें, क्योंकि वो आप उसको ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते. मेरे ख्याल में फैसल आपने कुछ जवाब देना है. मैं ये कह रहा था वो खैमे से निकला हो तो उसको निकाले. अच्छा जी, अब बिकॉज आई थिंक दैट देयर ये इज बड़ी कि ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से फैसल का तो यही मानना है ऑब्वियसली, व्हिच इज कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं. Because what we've also seen, and I just like to interject a question here, is कि सियासी जमातें एक contradiction भी है. जो पाकिस्तानी अवाम है वो मज़ाहमत और एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत को पसंद भी करती है और वोट भी देती है. लेकिन जब, क्योंकि आपने इक़्तिदार में आना होता है, आपको फिर ज़ाहिर है जो डिफैक्टो है उसको उसके साथ मिलकर काम भी करना होता है. हमने ना सिर्फ जो PDM की हुकूमत में देखा कानून साजी के हवाले से, आपकी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी तब भी हमने देखा. सो इफ़ यू कुड जस्ट रिस्पॉन्ड देयर. देखिए, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे लिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन हो रही है और उसमें फैसल सिद्दीकी, जिनको आई होल्ड इन द हाईएस्ट एस्टीम, सच अ फाइन माइंड, फैंटास्टिक क्लैरिटी ऑफ माइंड, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं कर रहा और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू में मैं शब्बर से एग्री कर रहा हूँ. हालांकि टैक्स रेवेन्यू पे तो समझ में आती थी. एंड आई विल टेल यू फैसल, मैं ये क्यों कह रहा हूँ. देखें, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फंडामेंटल इशू जो है वो है इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल डोमेन बाय द मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर में जिसकी कोई स्कीम नहीं, गुंजाइश नहीं है. 100% दुरुस्त बात है. पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए. ये तो पीपल मच बिगर देन फैसल सिद्दीकी एंड असद उमर हैव सेड दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम कायदे आज़म. आप स्टाफ कॉलेज जाएं तो अभी भी वहाँ कायदे आज़म की उस स्पीच का एक्सेप्ट लिखा हुआ है. आप पाकिस्तान आर्मी चीफ, किसी आर्मी चीफ से पूछ लें तो वो यही कहेगा कि फ़ौज का सियासत में रोल नहीं हो सकता. सवाल ये है कि ये सब बोलने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाने के बावजूद, ये आज तक हो रहा है. चलें, अब 2023 और 22 की डिबेट हम अलग से कर लेंगे. 2021 तक का तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने पब्लिकली कह दिया ना कि हम सियासत के अंदर इन्वॉल्व होते थे. जनरल बाजवा ने ओपनली कहा कि हम पिछले साल तक होते थे, अब हम न्यूट्रल हैं. अब वो कितने न्यूट्रल हैं या नहीं है वो आवाम उसका फैसला कर रही है. सो सवाल ये है कि क्या एक अच्छी इंटेलेक्चुअल क्रिटिक
और अच्छी लीगल आर्ग्यूमेंट से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरी नाकिस राय में जो फैज़ अहमद फैज़ कर गए हैं, जो अहमद फराज कर गए हैं, जो बहुत बड़े बड़े वकला कर गए हैं, हमारे पास उनसे ज़्यादा बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो इससे तो मामला हल नहीं होगा। हाँ, अवाम की जहन साजी ज़रूर हो जाएगी, सोच पे असरअंदाज ज़रूर हो जाएंगे, और जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो उस वोट पे भी उसका असर पड़ जाएगा। लेकिन जिस बुनियादी मसले की आप बात करें, वो मसला नहीं ख़त्म होता। तो फिर दो ही रास्ते नजर आते हैं। अगर सब इत्तेफाक करें, कायदे आजम से लेकर आर्मी चीफ तक इत्तेफाक कर रहे हैं कि फौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, तो हम कौन है उस बात से डिसएग्री करने वाले। सवाल यह है कि फिर रास्ते क्या बच जाते हैं? दो ही रास्ते बचते हैं। या तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसी है जहां लोग बंदूक उठाएंगे और बंदूक उठा के मुकाबला करेंगे, और सिविल फोर्सेस जो है रेवोल्यूशन के जरिए जो है वो मुल्क के ऊपर एक अपनी मर्जी का निज़ाम नाफिज कर देंगे। लेकिन वही कौम जो बार बार दिखाती है कि जब भी उसको मौका दिया जाता है अपनी डेमोक्रेटिक राइट को एक्सप्रेस करने का, तो वो बड़ी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ और अच्छे जहन के साथ इस्तेमाल करते हैं, बार बार करते हैं। लेकिन वही पाकिस्तानी कौम जो है वो बंदूकों के सामने खड़े होकर गोलियां खाने को तैयार नहीं है। सो वो रास्ता इस वक्त हमें नजर नहीं आता है। उस पर भी डिबेट है कि क्या वो अच्छा रास्ता है भी या नहीं है, उस पर भी आर्ग्यूमेंट्स है। मेरे ख्याल के अंदर तो ज्यादातर इस किस्म की जो रेवोल्यूशन हुई हैं उससे नुकसान ज्यादा हुआ है। रेयर एक्सेप्शंस हैं जहां रेवोल्यूशन से फायदे हुए, ऐसे हैं रेवोल्यूशन जिससे बेहतरी आई है। वैसे भी अगर आप उस रेवोल्यूशनरी मोड के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब इलेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और ड्यू प्रोसेस तो सब खत्म हो गया। तो फिर तो जिसके हाथ में बंदूक है, अब ये 92% एथनिक हान चाइना तो है नहीं कि जहां पे बंदूक के जोर पे एक ही पार्टी जो है हुकूमत कर ले और वो कौम को एक्सेप्टेबल भी हो, बिकॉज 92% एक ही एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले हैं और कोई भी एक ग्रुप, चाहे कोई भी ग्रुप हो, उसकी हेजेमनी जो है वो आवाम को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो दूसरा रास्ता फिर क्या निकलता है? दूसरा रास्ता ये निकलता है कि एक तरफ आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी डिफैक्टो पावर इज इमेंस, इसमें कोई शक नहीं है, और वो अपनी डिफैक्टो पावर कभी अपने इनिशिएटिव के ऊपर, कभी जिस तरह शब्बर कह रहे हैं कि हमारे जैसे सियासतदानों की इन्विटेशन के ऊपर वो इस्तेमाल करता है। तो उसका तोड़ तो फिर फैसल यही है ना कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको हम स्ट्रेंथन करें। तो अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेंथन होती है, अगर आपका पार्लियामानी निज़ाम स्ट्रेंथन होता है, अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होती है, तो उससे आप वो हदफ हासिल करते हैं जो आप, मैं और ये सारे शायद क्राउड में बैठे हुए तकरीबन सब लोग हासिल करना चाहते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ डिबेट नहीं है, ये उसी बड़े हदफ को हासिल करने के लिए ये जरिया है। कैसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Then I'll ask Faisal साहब to respond, and then we'll move to audience questions. I'll take about only three, because I think we have limited time. और इकट्ठा हम लेंगे, but I want कैसर साहब's response and then Faisal साहब's. Yes. Yeah, I think between the two views expressed by Faisal and Asad, I think I tend to fall on Asad's side. एक proper analysis ज़रूरी है. You have to analyze where the problem lies. You can't get distracted by subsidiary issues. Now the question is, बार बार ये कहा जाता है कि सियासी पार्टी इनवाइट करती है फौज को। ऐसा नहीं है। Assad has been in the integral part of government. I have been in the periphery of government. Observe what happens in the periphery. Those who don't fall in line disappear. Actually disappear. Physically disappear. मैं 3 साल बलूचिस्तान में रहा हूँ, और बलूचिस्तान के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उनके लिए न तो कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंट है, न 18वीं तरमीम रेलेवेंट है, न फेडरलिज्म रेलेवेंट है, न प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रेलेवेंट है, न एनएफसी रेलेवेंट है। बलूचिस्तान इज़ अ कॉलोनी रन विद द पावर ऑफ अ गन। अब उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप जो वहाँ भी असेंबली है, वहाँ भी चीज़ें हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का भी केस ऐसे ही है। ये सही है कि हम इनकलाब के थ्रेशोल्ड पे नहीं है, लेकिन इनकलाब, रिवोल्यूशन इज़ एन एक्सप्लोजन। द ऑपोजिट ऑफ एक्सप्लोजन इज़ इम्प्लोजन, where the system implodes from within. We are imploding. We are imploding every day. खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान में आर्म्ड रेजिस्टेंस है। कोई every other day there is a report in the newspaper of military personnel being killed. So अगर वो इनकलाब नहीं है तो फिर क्या है?
The country, there are parts of the country which are openly in an armed struggle against the Pakistani state. और बलूचिस्तान के अंदर the highest ranking officers कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से क्या वास्ता है. You talk to them in private, their emotional link with Pakistan has been broken. So I think there is a need to fight. शब्बर कह रहे हैं हमें घर जाना है. मैं तो 10 साल से जब घर से निकलता हूं तो मुझे पता नहीं होता मैं घर जाऊंगा. फौज is responsible for this situation 100%. और जब मैं बात करता हूं नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर कम करने की, तो वो यही है कि फ़ौज के जो नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड पावर्स हैं, सरहद पे अगर हिफाजत करनी है तो वो करें, लेकिन मुल्क के अंदर जो उनके मिलिट्री पावर है उसकी तो गुंजाइश नहीं है, और वो बजट कट से हो सकता है. और वो दैट्स व्हाट वी शुड फाइट एट. एंड आई थिंक very rightly it has been said that the reason Rawalpindi is so upset with the 18th Amendment and the NFC is because it has restricted their hands कहाँ तक वो पैसे ले सकते हैं, लेकिन और तरीके उन्होंने ढूंढे हैं. पहले तो इंडस्ट्री में आए, बैंक्स में आए, लॉन्ड्री भी बनाई, कसाई का काम और धोबी का काम भी शुरू किया, अब एग्रीकल्चर में भी आ गए. सो इफ दे कांट गेट समथिंग आउट ऑफ द फेडरल टैक्स किटी, they are putting their hands on real estate and everywhere else. So but this is a battle that we have to fight, and I think the battle lines should be very clear. ये कहना कि जी पार्टीज़ में जमहूरियत नहीं है वगैरह वगैरह, बात ये असद आपने कहा कि जी ये सेंट्रलाइज पार्टीज़ हैं, इनको फेडरलिज्म पसंद नहीं है, लेकिन 18th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी ने करवाई है. जो इस पे इल्ज़ाम है कि ये पार्टी जो है फैमिली पार्टी है, 18th अमेंडमेंट उन्होंने कराई है. आई वॉज अ मेंबर ऑफ द NFC. हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी प्रेसिडेंट से कि कम व्हाट मे देयर हैज़ टू बी अ डिसीजन, एंड देयर वाज अ डिसीजन. सो आई थिंक द रियल बैटल लाइन्स आर वेरी क्लियर. देयर आर नो अदर बैटल लाइन्स. There is only one battle line. Either this country will be run under colonialism, or it will run as a democracy. I think these are two choices. मैं सिर्फ एक क्विक वन लाइनर कमेंट मैं सिर्फ ये कर दूं. दोनों के वन लाइनर सिर्फ इजाजत है, इस वक्त वन लाइनर की. बिल्कुल मैं वन लाइनर कमेंट सिर्फ करूंगा. बिल्कुल जरूर पीपल्स पार्टी के होते हुए 18th अमेंडमेंट पास हुई. कराची के शहर में निकल के कराची के शहरियों से पूछ लें कि क्या उनको उसका कोई बेनिफिट नजर आता है या नहीं. ये इररिलेवेंट क्वेश्चन. देखिए मेरे पास टोटली इररिलेवेंट क्वेश्चन. इस सारे मसले का वन लाइनर सोल्यूशन है. वन लाइनर सोल्यूशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को हमेशा के लिए एग्जाइल करें, और मियाँ नवाज शरीफ साहब और बिलावल साहब गाड़ी में बैठे और अडियाला जाकर उसके साथ बंदे से बात करें जो कि इलेक्शन जीत चुका है. इसके अलावा पाकिस्तान का कोई रिश्ता नहीं है. अगर इनको समझ नहीं आ रही आज भी, और मेरा ये भी एडवाइस है कि कराची वालों को साथ नहीं ले जाएं. चले बाकी आप मियाँ साहब और बिलावल साहब जाएं गाड़ी में अडियाला आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट फजलुर रहमान को हमेशा के लिए एग्जाइल करते हैं. इनके जाने की जरूरत नहीं है. रावलपिंडी अगर इजाजत दे दे. देखिए यही तो सवाल है, यही तो सवाल है. आप अडियाला ये वन लाइनर से ज्यादा हो गया. मैं चाहती हूँ आखिर में मैं फैसल सिद्दीकी साहब जैसे and I'll add a question here, obviously you want to respond as well. देखिए हमने पिछले 1.5 साल में देखा है कि आइन और कानून के कोई मानी नहीं थे, राइट? हमने देखा कि सूबाई असेंबलियों में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इंतखाबात होने चाहिए थे, आइन के मुताबिक नहीं हुए. जो निगरान हुकूमतें हैं लंबी लंबी मुद्दतें जो आइन के मुताबिक नहीं थी उन्होंने गुजारी. एंजॉय द पर्क्स ऑफ पावर. सो जब आप what is the solution then? जहाँ what can political parties do? देखिए जो असद कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल बरखिलाफ बात कर रहा था. मुझे कोई इल्यूजन नहीं है कि जो डिफैक्टो पावर ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इट इज़ हेयर टू स्टे, लेकिन वो कुछ हमारे ऊपर रहम करें. 2017 से पहले 50-50% तो था डिफैक्टो एंड ड्यूरे. अब अगर वो चाहेंगे कि उनका पावर 80% हो और कॉन्स्टिट्यूशन का पावर 20% हो, इट्स एन अनवर्केबल सिस्टम. दैट इज़ द रियल इशू.
आप कुछ भी कर लें, इंटरनल डेमोक्रेसी कर लें, वो अंग्रेज़ी है ना जी, स्टैचूट में लिखी हुई है। आप अमेंडमेंट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन में 140A को और एलेबरेट कर दें। इन वर्ड्स की क्या मीनिंग है अगर इनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन होने नहीं देगा, अगर पावर शिफ्ट कर रहा है? दैट्स द रियल इशू। गालिब ने बहुत पहले कहा था कि यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां। अंग्रेज़ी लिखने से कुछ नहीं होगा, रियल इश्यूज़ यही हैं। दी मिलिट्री हैज़ टू अंडरस्टैंड इट इज़ वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग military dominated countries in the world. There is Egypt, there is Burma, there is partly Thailand, there is और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। दुनिया में ये कहीं नहीं वर्क किया है जी, कहीं नहीं वर्क किया है। They will be the first people to prove history wrong. I hope they understand, and if they understand, at least 50% पावर तो शेयर कर लें। हम सिर्फ ये तो वो करते हैं, हम ये भी नहीं कहते, हमारी इतनी लालच नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दें। 90 दिन में नहीं है तो 100 दिन में करवा लें, पूरे इलेक्शन रिग नहीं करें, 70% तो फेयर होने दें। इतनी ख्वाहिश है जी, हम तो मांग रहे हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं और ऑडियंस से अब कुछ मैं 3 सवाल लूँगी वेरी क्विकली। आप सर, और आई वुड लाइक लेडी इन द फ्रंट, यस। उनके पास अब माइक है, I'll come to you as well, but I want somebody maybe अगर कोई और कहीं और से भी अगर, क्योंकि सब यहाँ सामने वाले सवाल पूछें। जी सर। अच्छा सर, माशाल्लाह से आप लोगों ने बड़ा अच्छा आवाज़ नहीं आ रही आपकी, अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें। मुझे रिपीट कर देना सवाल क्या है मुझे। ठीक। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि 20 जून 2023 पाकिस्तान की फाइनेंस हिस्ट्री का स्याह तरीन दौर था, जब पाकिस्तान की 13 गैर जमहूरी पार्टियों ने SIFC को तश्कील दिया और उस पर फ़ौज की सरपरस्ती में बनाया। ये स्याह तरीन दिन है। फ़ौज को भी पता था, आप लोग कहते हैं कि फ़ौज के ऊपर कंधों पर चढ़ के आते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शबर जदी साहब, आपने भी सही तज्जिया किया फैसल साहब, कि उनको फ़ौज को पता है कि हम इनसे आसानी से डील कर लेंगे, क्योंकि दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर सियासी दुकानदार, और सियासी दुकानदार के साथ उनको डील करना आसानी होती है। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही होती तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचते कि SIFC बना लिया। इससे पहले बहुत सारी चीज़ों पर कब्जा कर चुका है। आहिस्ता आहिस्ता कब्जा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी डीलिंग सियासी दुकानदारों से हो रही है, सियासी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो रही है। इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, मैं एक सवाल यहाँ हो गया, एंड देन द लेडी ओवर हियर। जी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि शब्बर साहब समेत तमाम लोग खैरियत से घर जाएं और मैं भी खैरियत से रहूं। देखिए, जितनी भी लोगों ने बात की है वो घूम फिर के 18वीं तरमीम पे आ रही है, कानून के ऊपर आ रही है। मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह आइन की बहुत इज़्ज़त भी करती हूँ और मोहब्बत भी करती हूँ, लेकिन उस हकीकत तक हम नहीं पहुँच पा रहे कि क्या है कि देखिए, ये 2010 की असम्बली में 18वीं तरमीम लाई गई थी, जो उस वक्त के आवाज़ आ रही है 18वीं तरमीम उस असम्बली में पेश की गई थी जिस वक्त के एक ज़ीरक सियासतदान सदारत कर रहे थे, जनाब जरदारी साहब एक ज़ीरक सियासतदान थे। उन्होंने एक बड़ी फरागदिली का मुजाहरा किया कि इख्तियारात जब तक रूट्स में नहीं जाएंगे अवाम को सहूलत नहीं मिल सकती। मेरी पार्टी ने भी, मैं भी सियासत लगती हूँ, उसको हमने हिमायत की थी। लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि कराची वालों से पूछिए जाके कि जब वो इख्तियारात दिए गए तो वो कितने खुश थे। वो इसलिए नहीं खुश थे कि वो सूबाई तक तो आए, इख्तियारात नीचे तक गए ही नहीं। सिर्फ 3 इख्तियारात मांगे गए थे सूबों के लिए, कानूनी, फाइनेंशियली और एक तंजीमी इख्तियारात, क्योंकि देखिए रूट्स पर रहने वाला आदमी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। बल्कि बात इस हद तक चली गई कि कराची में एक मेयर को बात 7.5 साल तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। जो ओवर पॉपुलेटेड शहर होंगे वहाँ की आबादियों के साथ क्या नतीजा होगा। और आज की तारीख तक मैं भी पार्लियामेंटेरियन रही हूँ, मैंने 239A में 4 के लिए सिर्फ कहा था कि निकाल दीजिए, उसमें ये शर्त, ये तो कहा गया इख्तियारात दे दीजिए, लेकिन ये कहा कि 2/3 मेजॉरिटी सूबाई असम्बली की मंजूर करे। ठीक है, वो ना मंजूर, सुनिए, ना वो मंजूर होंगे ना ये काम मुकम्मल होगा। तो सवाल ये है कि हमें 73 के आइन को बने हुए भी 45 साल हो रहे हैं, आबादी में तब्दीली, हर चीज़ में तब्दीली आ चुकी है। तो सवाल ये है कि इस आइन की एक शिक में तब्दीली
क्यों नहीं लाई जा रही है? वो तब्दीली लाएंगे। ये तमाम मसाइल वकील साहब ने भी जिक्र किया उसी बात का कि आइन तो आप ले आए लेकिन मुकम्मल नहीं लाए, इसलिए ये परेशानी है। ठीक है, मैं इन सवालों से पूछिए। आखिरी सवाल इस तरफ। Assalamu alaikum. Bilal Ahmed Sheikh, energy professional, retired. Asad, आप सबसे, especially Asad आपसे सवाल है. Can you see me? Asad? जी 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 ECC ने अभी 15th February को डिसीजन दिया है कि सब्सिडी ऑन फीड गैस ऑफ एंग्रो will be removed, withdrawn. So the price suggested by the Petroleum Division is 760 rupees per MMBTU. Finance Minister has agreed to 1597 rupees per MMBTU. I don't know why. My question is, right now, urea 50 kg bag is being sold at control prices 4,000 rupees, black 6,000 rupees. I just came back from Punjab. ये तो Can you टॉपिक ही please- नहीं है आज का। क्यों Sorry, सवाल पूछ I'm रहे हैं? sorry, because this is something which I feel we should be addressed. Because I want to know from all of you what would be the cost of per urea, because this is the staple of, please. I mean, may reject the question. it does sort of, it is in part. I know, I'm not it a is the right constitution question. expert, but I just want to know. Everybody should listen that the roti in this country would be expensive. If Asad can explain. सर मैं आपको चलें। it's off topic, मैं आपको अलग से बता दूंगा after we end. Thank you. So if I can get another question then, उस तरफ पीछे नौजवान वहाँ है, वहाँ पीछे नौजवान है, जी. Yes. मैडम, मेरा केसर बंगाली साहब से सवाल है, 18वीं तरमीम के बाद सिंध सूबे के पैसे किसके जेब में जाते हैं? और सिंध में क्या तरक्की हुई है? सिंध के जब आदमी मर जाता है तो उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, और बड़े आदमी की जब बिल्ली बीमार हो जाती है तो हेलीकॉप्टर के जरिए, जहाज के जरिए वो लाहौर इलाज के लिए जाती है। तो सिंध में कौन सी 18वीं तरमीम के बाद तरक्की हुई है? मेरा केसर बंगाली साहब से ये सवाल है। ठीक है, थैंक यू. मुझे वैसे सवाल समझ नहीं आया था. ओके जी. सर मेरा आपसे सवाल यही है कि अगर आप बता सकते हैं किससे सवाल करें. मैम ये जो आपके साथ बैठे हुए शबर हैं, जैदी साहब, ठीक है. सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने भी हमसे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहा है इस मुल्क में, तो आपने देखा होगा कि मेरा सवाल डिफेंस सिस्टम पे है कि देखा होगा कि आपने कि यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा वो भी हमें अफ़गानिस्तान से मिला, और जो गवर्नर पंजाब थे सलमान तासीर का बेटा शहबाज तासीर, वो भी हमें अफ़गानिस्तान से मिला. और बहुत सारे ऐसे कई सारे फिगर्स हैं जिनके बेटे वहाँ से मिले. अगर गवर्नर के बेटे यहाँ पर महफूज नहीं हैं, अगर क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के बेटे यहाँ पर महफूज नहीं हैं, तो हम जैसे लोग कहाँ महफूज होंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर वो डिफेंस सिस्टम भी नहीं चला सकते तो हमारी सियासत में अंदर आके घुसते क्यों हैं? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू. ये एक जनरल सवाल है. मैं अब दिस इज़ वेयर आई एम पुटिंग अ स्टॉप टू द क्वेश्चंस. मैं एक एक करके एड्रेस करूँगी. वक्त ख़त्म हो रहा है एंड एक्चुअली ओवर टाइम. आई एम रियली वेरी सॉरी. जिसने मज़ीद सवाल पूछने थे. अच्छा, एक जो सवाल है वो SIFC के हवाले से था. मैं चाहती हूँ कि अगर whoever wants to respond to this question about the SIFC कि एक स्याह तरीन दिन था. ये सियासी जमातें दुकानदारी कर रही थी, तभी उन्होंने इसको मदद की थी फौज की मंजूर करवाने में. SIFC के बारे में कुछ बता दूं आपको वेरी क्विकली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर यहाँ से काफ़ी रेज हुआ था. असद साहब भी थोड़ा बहुत अरसे पावर में रहे, मैं थोड़ा कम अरसे कुछ जगह पर रहा हूँ. हमारे मुल्क में एक मसला ये भी रहा है कि सियासतदान जब फैसला करते हैं, कोई चीज़ का फैसला कर ले, उसके बाद जब वो हट जाते हैं तो उसके बाद अगली जगह उनकी नैब और जेल होती है, और वो इसकी वजह से कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाते क्योंकि उस फैसले के अंदर फौज शामिल नहीं होती. तो SIFC इसलिए बनाई गई है कि वो सियासतदान जब फैसला करे उसके बाद वो नैब में नहीं जाए. अब आपको समझ आई है SIFC? समझ आ गई? ठीक है. अब आप ये फैसला कर लें कि ये सिस्टम कितने दिन में ख़त्म होगा. वो फैसल साहब की जो मर्जी आर्गूमेंट हो, मेरे से डिसएग्रीमेंट नहीं है. मैं अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ. मैंने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं किए
कि मुझे पता था कि जब मैं जाऊंगा मैं नैब में खड़ा होऊंगा। असद साहब जानते हैं कि हमारा नैब का और कानून क्या है, हमारे कानून। जब हम हट जाते हैं इक़्तिदार से तो हम सारे नैब में खड़े होते हैं। तो अगर आप आर्मी को अंदर नहीं बिठाएंगे तो फैसले नहीं होंगे, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। अब इसको कैसे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेंगे? अगर असद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं आएगा। देखिए, ये जो शब्बर साहब बात कर रहे हैं ये मुशर्रफ साहब करते थे कि इफ़ यू वांट टू कीप अस आउट ब्रिंग अस इन, ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी। भाई हमने तो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई वो नहीं किया इंटरफियर, उनको पूरी इंटरनल सिक्योरिटी हैंड ओवर कर दी है मुल्क की। देख लें हाल क्या हाल है इस मुल्क का। फॉरेन पॉलिसी भी हैंड ओवर कर दी है, देख लें क्या हाल है। डिफेंस पॉलिसी भी हैंड ओवर कर दी है, देख लें क्या हाल है। अब ये शब्बर साहब ये कह रहे हैं इनको इकोनॉमिक पॉलिसी भी हैंड ओवर कर लें, फिर अल्लाह ही हाफिज है जी। ठीक है, दो और क्योंकि सवाल थे, वक्त हमारे पास वक्त, आई एम सॉरी शब्बर साहब, वक्त थोड़ा क्या हमारे आज हैंड ओवर नहीं है? ये मेरा सवाल आपसे ये है। आर्ग्यूमेंट हियर इज हैंड ओवर है, लेकिन कहाँ आप एक तवाजुन आप ला सकते हैं? इस वर्ड फैसल इज एक्चुअली ट्राइंग टू से देखिए 2008 से 2017 तक कुछ ना कुछ बैलेंस ऑफ पावर तो था। उसमें आपने 18वीं तरमीम भी देखी, उसमें आपने एक जुडिशल इंडिपेंडेंस भी देखी, मीडिया फ्रीडम भी देखी। ये बहुत 2018 के बहुत तेज़ी से ये डिफैक्टो पावर आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। 50%। इफ़ यू डोंट स्टॉप इट, इट विल नॉट स्टॉप विद बलूचिस्तान। अब ये स्प्रेड कर दिया है, केपी, पंजाब, वही मॉडल इम्प्लीमेंट हो रहा है जो बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, क्विकली कैसे साहब, मैं इसमें एक और जो सवाल था कि दोबारा से तरमीम की ज़रूरत है, एंड इट गोज़ बैक टू द सेम क्वेश्चन जो फैसल साहब भी क्या बात कर रहे थे कि इट हैज़ टू गो बैक, एंड द पॉइंट दैट ही इज़ मार्किंग इज़ 2017, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट जब चलाई जा रही थी पोस्ट 2018 वो भी फ़ौज के मदद से चलाई जा रही थी, राइट? तो अब इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सख्ती, अभी तो ये भी नहीं पता हुकूमत में आएगी, क्या अब मुमकिन भी है 18वीं तरमीम जैसे एक मेजर अमेंडमेंट करने? अगर 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो उस प्रोविंशियल अथॉरिटी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। द सेनेट मस्ट ऑल्सो हैव द पावर टू पास बजट्स। इस वक्त बजट सेनेट के डोमेन में नहीं है, ये आना चाहिए। लेकिन मैं आपकी बात को एड्रेस करना चाहता हूँ, और असद ने जब कहा कि कराची वालों से पूछे 18 अमेंडमेंट के बारे में, बड़ी तालियां बजी है। मिसप्लेस्ड है आपकी तालियां, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स। मैं बहुत पुराना मेरा सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट, पढ़ाता भी रहा हूँ, मेरी एक किताब भी है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, अभी हाल ही में आई है। बात यह है कि दो मुख्तलिफ पैरेलल पावर कॉन्फ्लिक्ट्स थे। एक था बिटवीन फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, द अदर इज़ बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द लोकल गवर्नमेंट्स। फर्स्ट बैटल हैज़ बीन वन, मे बी 70-80%. The next battle has to be won. But just because the next battle has yet to be fought doesn't mean the first battle has to be discarded and discredited. अच्छा, ये आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, बात ये है कि जी जब that's your you'll have the last comment. ठीक है सर साहब, are you finished? जी असद उमर साहब, and I want you to address एक जो नौजवान ने भी सवाल किया था महफूज होने के अलावा, उन्होंने कहा कि जब अगवा हो जाते हैं गवर्नर के बेटे, फॉर्मर वज़ीर आज़म के बेटे, नैब से महफूज नहीं है सियासतदान, फिर आवाम अपने आप को महफूज कैसे तस्वुर कर सकती है? How can they trust an institution meant to defend? I'm going to add that question and your last comment. देखिए, मैं ज़रा क्विकली इस पे कमेंट कर दूं कि बंगाली साहब, मैंने खुद कहा था कि 18th अमेंडमेंट का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। उनको ये नहीं कह रहा है 18th अमेंडमेंट रोल बैक करने की, लेकिन हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा ये इनकम्प्लीट है स्टेप, और जब तक हम अगला स्टेप नहीं लेते, और मेरी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ये है, हमें एक आईनी तरमीम लानी चाहिए, और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट किया जा सकता है कि अभी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास एक जनरल गाइडलाइंस है, जिस तरीके से नेशनल फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, 60 दिन या 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराना ही कराना है। तोड़ देते हैं उसको भी, लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो होती है। सो वी विल हैव टू बाइंड द गवर्नमेंट्स के आपने लोकल गवर्नमेंट लाना है, और इसी से कनेक्टेड पॉइंट है जो उन्होंने सिक्योरिटी की एग्जाम्पल दी। मैंने शुरू में क्या एग्जाम्पल दी थी? पानी पीने की। जब आपके
शहरी को अपनी जो उसका हक है, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी होती हुई नज़र आएगी तो उसका फिर सिस्टम के ऊपर एतबार होगा, फिर उसका वफाक के ऊपर और रियासत के ऊपर एतबार होगा। वीगो डाले से रियासत पे एतबार नहीं पैदा किया जा सकता। आप अगर करना चाहते हैं कि रियासत मजबूत हो तो आपको अवाम को उनकी ज़रूरियात पूरी करनी होंगी और उसके लिए ताकत जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद से निकाल के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपको ले जानी पड़ेगी, बशमूल कराची, सिर्फ कराची नहीं, बशमूल कराची। सर मेरी किताब है, उसमें ये डिटेल में मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का चैप्टर है जो हल जो है कैसर बंगाली साहब की किताब में है, वो बना बनाया एक कानून भी मौजूद है। लेकिन सवाल इस वक्त शायद सबके जहनों में तो यही है, हुकूमत कब बनेगी, कौन से बनेगी और उनको कितने इंसेंटिव होंगे जो सियासी हुकूमतें जो सूबाई सतह पर आएंगी टू डिसेंट्रलाइज पावर एज वेल। आई रियली वांट टू थैंक माय पैनलिस्ट फैसल सिद्दीकी, कैसर बंगाली, असद उमर एंड शबर जैदी। वक्त ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच एंड आई विश आई कुड हैव इंक्लूडेड मोर क्वेश्चंस। मैं ये कहता हूँ